گا اگر آپ کو کچھ بھی چیز سمجھنے میں مشکل ہو، ٹھیک ہے؟ بیکاز انشاءاللہ آج ہم لوگ نا جو عرب کے، ٹھیک ہے، عرب کے آس پاس جو ٹریڈنگ روٹس تھے، ٹھیک ہے، جو تجارتی جو رستے تھے نا، ان کو انشاءاللہ ہم لوگ آج ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو بھی مشکل ہے آپ لوگ فوراً مجھے بتا دیجیے گا، اوکے؟ تو اچھا ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے سیرہ جو اسٹارٹ کی تھی اس کا اچھا جو اصول تھا نا اس کو بھی دوبارہ جو ہے وہ ریوائز کر لیتے ہیں. سیرہ پڑھنے کا یا پڑھانے کا اصول یہ ہے کہ آپ جب سیرہ کو سمجھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یا پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، یا پڑھا رہے ہو، تو آپ اتنے کانشیس ہو کہ آپ کو لگے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جیسے آپ کے سامنے اگر بیٹھے ہوتے ہو اور آپ ان کو بتا رہے ہوتے نا ان کی ہی باتیں، اتنا کانشیس آپ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اتنا زیادہ کانشیس ہو سکیں. اوکے، تو پھر ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، جو ہم نے سیرہ جب اسٹارٹ کی تھی تو ہم نے سب سے پہلے ایک کمپیریزن ڈرا کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ کیسے باقی جو لیڈرز تھے، ٹھیک ہے، جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر آئے جیسے اسکندر اعظم ہو گیا، ٹھیک ہے، جولیس سیزر ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اور بھی جو سارے تھے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ڈفر ہو رہے تھے، کیسے مختلف ہو رہے تھے، متفرق جس کو بولتے ہیں نا، وہ کیسے ہو رہے تھے. تو اس میں صرف جو چیز تھی وہ یہی ڈفرنٹ تھی کہ ان سب میں نا ایک چیز جو ڈفرنٹ تھی وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرپس تھا وہ ڈیوائن تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا تھا. مطلب اللہ تعالیٰ کے جو نظام ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زمین پہ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں وہاں پہ رہتے ہو ان پہ اللہ تعالیٰ کے نظام انصاف کو قائم کرنا، ٹھیک ہے. لیکن باقی جو سارے لیڈر تھے ان کا کیا تھا؟ ان کا یہ تھا کہ اپنی تجوریاں بھرنا، اپنے لوگوں کو دکھانا کہ ہم کتنے پاورفل ہیں، ٹھیک ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، لوگوں کو دکھانا کہ اگر اقتدار اعلیٰ جو ہے جس کو کہہ لو وہ انسان کے ہاتھ میں آ جائے تو اور اس کے پیچھے کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف نہ ہو تو وہ کس حد تک گر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کو دکھانا مطلب اس چیز کی پکچر تھی وہ لوگ، صحیح ہے، یہ سمجھ آ گئی. پھر اس کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم نے ہسٹری کوئی پڑھنی ہو تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اصول نہیں بلکہ ہسٹری کو دیکھنا کیسے ہوتا ہے نا، تو اس کی تھوڑی پکچر ہم نے کھینچی تھی کہ مطلب لائک بہت سارے لوگ نا ہسٹری کو مختلف طرح سے تعبیر کرتے ہیں ہسٹری کی، ٹھیک ہے. جیسے خواب کی تعبیر کی جاتی ہے نا، ایسے ہی ہسٹری کی تعبیر. فار ایگزامپل اگر میں نے میں کسی جگہ پہ میں گئی ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ جھگڑا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گی کہ اچھا فار ایگزامپل میں نے دیکھا ہے کہ اچھا ایک جٹ فیملی سے تھا، ایک راجپوت فیملی سے تھا، ٹھیک ہے، تو یہ فیملی کا جھگڑا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. اب اسی سیم جھگڑے کو کسی اور نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کہے گا؟ وہ فار ایگزامپل وہ اس چیز کو ایسے بیان کرے گا کہ اچھا وہ جھگڑا ہو رہا تھا، وہ اس چیز پہ ہو رہا تھا کہ ایک نے نا پانی بند کر دیا تھا دوسرے کا، ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز اس نے کس کی؟ یہ مادی مٹیریل مطلب اس نے تعبیر کی ہے، مادی تعبیر کر دی ہے ایک ایونٹ کی، ٹھیک ہے. اور میں نے کون سی تعبیر کی تھی؟ میں نے نسلی تعبیر کر دی ہے کہ اچھا جی وہ ان کی کاسٹ ڈفرنٹ تھی تو اس لیے ان کا جھگڑا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. لیکن دوسرے نے بھی وہی ایونٹ دیکھا لیکن اس نے ڈفرنٹ طرح سے تعبیر کی. تو اس طرح بہت سارے جو ہسٹورین ہوتے ہیں نا، جو تاریخ دان ہوتے ہیں، وہ جب ہسٹری کو لکھتے ہیں تو وہ ڈفرنٹ طرح سے وہ اچھا کچھ آئیں گے جو فار ایگزامپل موسٹلی جو ایشینز ہوں گے نا، ٹھیک ہے، جو یہ جو مطلب کہتے ہیں ایشیائی جو لوگ ہوں گے وہ جب تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو لکھنے لگیں گے تو ان کا جو سمجھ ہوگا نا، فار ایگزامپل کچھ جو ہوں گے نا وہ لکھتے ہیں کہ اچھا یہ سارا کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں کیا نا وہ سارا معجزات کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا معجزات پہ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے. کچھ آئیں گے وہ کہہ دیں گے کہ اچھا جی وہ جو انصار تھے، جو مدینہ کے لوگ تھے، وہ بہت زیادہ وہ تھے جنگجو تھے، اور مطلب عرب کا جو وہ لینڈ تھا، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ صحرا والا علاقہ تھا، وہاں پہ اور تو کچھ ہو نہیں سکتا، جنگ و جدل کی وجہ سے یہ والا مطلب سارا کچھ جو ایونٹ تھا نا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سارے نا اپنے جیسا جس نے جو اینک پہنی ہوگی نا، ٹھیک ہے، جس کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا نا وہ اسی طرح سے ماضی کی تعبیر کرتا ہے، صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ تعبیرات پڑھی تھی، ٹھیک ہے.
और फिर हमने उसमें एक ये भी पॉइंट डिस्कस किया था कि लोगों को अगर आपने कंट्रोल करना है ना, तो आप उनके माइंड को कंट्रोल करो, उनके जहन को कंट्रोल करो, ठीक है। उनको नफसियाती तौर पे अपना अगर आप बना लोगे ना किसी को गुलाम, तो वो ताउम्र आपका गुलाम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो ये जो है इंडो पाक में क्या बरसगीर, ये जो इंडिया और हिंदुस्तान पाकिस्तान तरह की है, बहुत सारी वो चलती है ना, मिथ चलती है कि अगर वो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो क्या हो जाएगा, आज मेरा दिन नहीं सही गुजरेगा, या अगर मेरी हथेली पे खारिश हो रही है तो मेरे पैसे आएंगे, ठीक है, मेरे पास पैसे आएंगे, या मेरी वो बाएं आंख वो हिल रही है तो वो पता नहीं मेरा दिन खराब चल जाएगा। मतलब इस तरह वाली जो मिथ ना, कुछ लोग इन पे बहुत ज्यादा जाते हैं, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं, इतना ज्यादा मानते हैं कि वो फिर उन अगर इनके साथ ऐसा हो जाए ना, तो वो फिर काम नहीं करते, काम अपना रोक देते हैं कि नहीं नहीं ये हो गया, मतलब क्या वो उनको किसी चीज ने बांध रखा है क्या, नहीं ना। उनको नफ्सियाती तौर पर उनको इस चीज मतलब वो नफ्सियाती तौर पर उन्होंने इतना इस चीज को अपने जेहन पे सवार कर लिया कि अब वो उस दिन अपना काम करेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे इलाके में ना, यहाँ पे फेमस है कि जुमेरात वाले दिन ना कपड़ों की कटाई नहीं करनी, अगर आपने कर दिया तो वो कपड़ा खराब हो जाता है। तो इस तरह ना बहुत सारे टेलर्स जो है वो बना लेते हो ना, तो आप उसको उस पे काबू पाना जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। कोई भी मतलब लोगों को कोई भी फियर थमा दो, कोई भी उनको खौफ थमा दो, ठीक है, और उनको कह दो कि अच्छा अगर तुम ये कर लोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो वो लोग जो है ना वो उस पे बिल्कुल यकीन कर लेंगे, ठीक है। मतलब कुछ लोग इतने मतलब वो होते हैं जो सोचते नहीं है, सही है। तो वो वाले, अच्छा ये इस तरह क्या करते हैं, इस तरह हिस्ट्री की जो इस तरह तारीख की जो तबीरात होती है, ठीक है, ये जो तारीख दान होते हैं ना, उनको इन चीजों का बहुत ज्यादा पता होता है और वो इस चीज को माइंड में रखते हैं। इसी तरह अगर अब हमने पढ़ना है ना, जब जब तो हमने भी साथ में देखना है कि हम जब पढ़ रहे हैं तो ये वाली जो चीज है वो किस कॉन्टेक्स्ट में जा रही है, सही है। जो साथ साथ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बताती भी जाऊंगी ताकि हम लोग इस चीज के भी एक्सपर्ट बन जाए। अच्छा फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब्स में स्पेसिफिकली स्पेशली अरब में क्या हो रहा था, ठीक है। अभी हम रोमन्स और पर्शियन की तरफ नहीं गए, अभी हम सिर्फ अरब अरब तक ही थे कि अरब में क्या हो रहा था। वहां पे ये हो रहा था कि वहां पे जो कुसई था, ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फोर्थ या फिफ्थ ग्रैंडफादर जो थे ना वो, हाँ फोर्थ थे, तो वो आई, ठीक है। उन्होंने पता है क्या, उन्होंने जो वहां पे जो सरदार था, ठीक है, उनकी बेटी से हुलाइल था, हुलाइल सरदार था वहां पे, उनकी बेटी से शादी की, ठीक है। और फिर वहां के लोगों को कह दिया कि हम मक्का के असल वारिस हैं, ठीक है, ली। तो और फिर अपना जितना भी सारी जितनी भी कुरैश थी ना, उनको क्या कह दिया, उनको कह दिया कि ये मक्का के आसपास आबाद हो जाओ, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ के मुतवल्ली हैं, तो यहाँ पे अगर हम आबाद हो जाएंगे तो हमको मक्का को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। बिकॉज जिसके हाथ में मक्का, उसके हाथ में क्या होगा, पूरे अरब की जो इकोनॉमी होगी, ठीक है, पूरे अरब की जो मैशियत होगी ना, वो सारी क्या होगी, उसके हाथ में होगी। आगे चल के ये जो चीज है ना, वो इसको और जरा हम डिस्कस करेंगे, तो कि वो कैसे मतलब पूरे जो जिसके हाथ में मक्का, उसके हाथ में अरब की कैसे पूरी माशियत जो है वो कैसे हो सकती है, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा फिर उसके बाद जो है हमने ये सारा डिस्कस किया कि जब उसने कुसई ने आबाद किया लोगों को आसपास, ठीक है, तो बहुत ज्यादा उसको बनी बकर की तरफ से बनी किनाना की तरफ से और भी बहुत सारे जो कबाइल से कुरैश के और दूसरे जो थे ना, बनी तई हो गया, ठीक है, ये सारे जो थे उनकी तरफ से बहुत ज्यादा मुखालफत का सामना करना पड़ा कि ओहो तुम कैसे कर सकते हो, लकी जो मक्का तो इतना सेक्रेड है, इतना मुकद्दस है कि हमने अगर यहाँ पे आना हो तो हम बस हज करने के लिए आते हैं, और वो भी जब हमने आना हो तो मक्का से बहुत दूर ही अपनी जूतियां उतार देते हैं, क्योंकि ये जो इस जगह को ना बहुत ज्यादा वो मुकद्दस समझते थे, ठीक है, और उसमें जूती जूती समेत
ان کو وہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، اتنی وہ سمجھتے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ اچھا اب اس کے ارد گرد ہم گھر بنا لیں گے اور اس کے ارد گرد ہم رہنے لگ جائیں گے، تو یہ کتنی مطلب بڑی وہ، مطلب ان کو لگتا تھا کتنا بڑا گناہ کا کام ہو جائے گا، نعوذ باللہ، ان کو اس طرح لگتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی بنو قصی نے کیا کیا، اپنے پورے علاقے کو اس کے ارد گرد آباد کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے بنو قصی نے ان کو کہا کہ دیکھو اب تم آباد تو ہو گئے ہو، یہ جو باقی جتنے بھی تمہارے مخالف قبائل ہیں وہ تب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک تمہیں یہاں سے نکال نہ دے، تو تم اس طرح کرو کہ جو باقی دوسرے آؤٹ سائڈرز ہیں نا، جو باہر سے لوگ آئیں گے نا، ان کا دل جیت لو۔ اور وہ کیسے جیت لو، کہ ایسا کرو کہ کیونکہ باہر کے جو لوگ جب صحرا میں آئیں گے، ٹھیک ہے، صحرا میں سفر کر کے حج کرنے کے لیے آئیں گے، تو نہ تو ان کے پاس کھانا ہوگا، نہ ہی پانی ہوگا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے جو مکہ کے ارد گرد نا سارے جو باورچی خانے، وہ آؤٹ سائڈ کچن نہیں ہوتے کہ مطلب مسافر خانے، وہ بنا لو، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کے لیے پانی کا بھی بندوبست کرنا، وہاں پہ ان کے لیے کھانے کا بھی بندوبست کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ حج کر رہے ہوں گے نا، تو اس دوران بھی ان کو کھانا مطلب دینا، تاکہ وہ لوگ جو ہو نا، کیونکہ لوگ جو ہیں اب باہر سے جب آ رہے ہیں، ان کو سب سے بڑی کیا چیز ہوگی، مطلب سب سے بڑی دقت ان کو اس وقت کیا ہوگی، بس کہ ان کو کھانا مل جائے، ان کو آرام کرنے کے لیے جگہ مل جائے، اور ان کو پانی مل جائے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ ان کو کوئی بھی اور چیز مطلب وہ تنگ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو تم کنٹرول کر لو گے نا، تو باقی جو سارے لوگ ہیں نا، وہ بھی جو باقی سارے قریش کے لوگ ہیں نا، باقی قبائل جو ہیں، وہ بھی وہ ہو جائیں گے، سکون سے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کے تم مفادات کنٹرول کر رہے ہو، کو سیٹسفائی کر رہے ہو۔ اچھا، ان لوگوں نے ٹھیک ہے، ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جب حج کا موقع آتا ہے تو وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، اور اس کے دوران ہی جو قصی تھا وہ اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر جب وفات ہونے لگتی ہے تو وہ اس کے 4 بیٹے تھے قصی کے، ایک تھا عبد الدار، پھر اس کے بعد تھا عبد المناف، پھر اس کے بعد تھا عبد العزا، اور اس کے بعد تھا عبد القصی۔ اب یہ جو عبد الدار اور عبد المناف ہے نا، ان دونوں کے نام آپ لوگوں نے بہت زیادہ یاد رکھنے، کیونکہ یہ بہت زیادہ یہ سیرہ میں یہ چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، ان کے قبائل جو ہے۔ اب یہ جو عبد المناف تھا نا، یہ قصی کا جو بیٹا تھا نا، یہ بہت ذہین تھا، بہت اسٹریٹجک پلاننگ میں نا یہ بہت ماہر تھا، ٹھیک ہے، جس کو بولو کہ بہت عقل مند اور بہت ذہین یہ بندہ تھا۔ لیکن یہ جو عبد الدار تھا نا، یہ آپ اس کو سمجھ لو کہ جیسے ایک انٹروورٹ نہیں بچہ ہوتا، کہ جس کو اتنا زیادہ وہ مطلب اتنی زیادہ عقل مند نہیں ہوتا، یہ ایسا بچہ تھا، اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا۔ لیکن قصی نے کیا کیا، قصی نے کیا کیا کہ یہ جو عبد المناف تھا نا، عبد الدار تھا نا، اس کو جو سارے مطلب حاجیوں کو سکھایا، ٹھیک ہے، اور جو باقی حرم کی جو مینجمنٹ کے سارے کام تھے، دار الندوہ وغیرہ، یہ جو سارے جتنے بھی کام تھے نا، اس نے کیا کیا، عبد الدار کو دے دیے۔ کیوں دیے وہ، اس نے اس لیے دیے تھے تاکہ عبد الدار جب اب مطلب اگر میں ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت انٹروورٹ ہوں فار ایگزامپل، اور اب مجھے کوئی دے رہا ہے کہ اچھا لیڈرشپ دے رہا ہے کہ تم نے نا اس گروپ کو ہینڈل کرنا ہے، تو میں کیونکہ انٹروورٹ ہوں، لیکن مجھ پہ جب ذمہ داری پڑے گی تو کیا ہوگا، ذمہ داری خود ہی مجھے بڑا کر دے گی، اور میں خود ہی کل کو پلاننگ کرنے لگ جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اب کو صحیح کی بھی یہی سوچ تھی کہ عبدالدار پہ جب ذمہ داریاں پڑیں گی تو وہ خود ہی کیا ہو جائے گا، وہ عقل مند ہو جائے گا، وہ لوگوں کو لیڈ کرنا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بعد میں جو عبد المناف تھا نا، اس نے مطلب لائک وہ بھی اس کی ہیلپ کرنے لگے عبد الدار کے، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے ہم مطلب لائک ڈسکس کریں گے کہ ان دونوں نے کیسے جو اپنے جو مینجمنٹ رسپانسبلٹیز تھی نا، ان کو کیسے مطلب ڈیوائڈ کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک جھگڑا بھی ہوتا ہے ان کے درمیان میں اس کو ہم آگے دیکھیں گے۔ لیکن اب دیکھیں، اب جب قصی مر جاتا ہے نا، قصی کی وفات کے بعد عبد المناف جو ہوتا ہے نا، وہ اس کی یہ جو ڈسٹرکٹ وہ آگے جو کر رہا ہوتا ہے، ٹاؤن پلاننگ جو کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو آباد کر رہا ہوتا ہے قصی، اس چیز کو ہی آگے کون بڑھاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے عبد المناف۔ اب عبد المناف کے بعد نا، عبد المناف کا ایک بیٹا آتا ہے ہاشم، ہاشم بن عبد المناف۔ یہ جو ہے نا قصی کے بعد، مطلب لائک ہسٹورین جو تاریخ دان لکھتے ہیں کہ قصی کے بعد یہ جو ہاشم تھا نا، اس جو انسان ہے، اس انسان کو ایسے کنسیڈر کیا جاتا ہے جیسے کہ یورپ کی گولڈن ایج تھی نا، ہر دور میں ایک گولڈن ایج، ٹھیک ہے، سنہری دور ہوتا ہے، تو جو عرب کا سنہری دور تھا نا، وہ ہاشم نے سٹارٹ کروایا تھا، کیونکہ جو قصی تھا نا، اس نے یہ تو بنا دی تھی، اس نے لوگوں کو آباد تو کر دیا، ٹھیک ہے، لوگوں کو ایک مقصد بھی دے دیا، ٹھیک ہے، کہ تم لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہو اور تمہیں اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو ان کی اکنامک حالت تھی نا، جو ان کی معاشی حالت تھی، وہ بہت زیادہ بری تھی،
ठीक है, हाशिम से पहले उनमें बहुत ज्यादा ना कुरैश बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको वो सहरा, अब देखिए सहरा में रह रहे हैं, उनके पास कोई और भी ना, उनके उनके पास जमीनें हो रही है, मक्का में कोई जमीनें नहीं होती थी, ठीक है, सहरा में रह रहे हैं ना, उनके पास कोई पानी का इतना ज्यादा सोर्स था, और भी कुछ भी इनके पास कोई करने का कुछ था ही नहीं, तो इनमें ना बहुत ज्यादा भूख थी। लेकिन हाशिम जब आया ना, हाशिम ने दो ट्रेड रूट, दो तजारती जो रस्ते थे ना वो मुतारिफ कराए। जैसे कि हम सूरह कुरैश में भी पढ़ते हैं, सूरह कुरैश में अल्लाह ताला यही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, ठीक है। और कुरैश को भी इसी नेमत का मतलब याद दिला रहे थे, लीलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलत शिताई वस्सैफ, ठीक है, कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि गर्मी, गर्मी में ये लोग किधर क्या करते थे, गर्मी में ये लोग शाम और फलस्तीन की तरफ सफर करते थे, क्योंकि ये जो इलाके थे ना ये ठंडे इलाके थे, ठीक है। और फिर सर्दी में ये लोग क्या करते थे, सर्दी में ये यमन की तरफ और जो अरब के जुनूब की तरफ ये जो गर्म इलाके थे ना, ये इस तरफ सफर करते थे, तिजारत के लिए सफर करते थे, ठीक है, घूमने फिरने के लिए नहीं, क्योंकि ये जो इलाके थे ना ये गर्म इलाके थे, और वहां से माल तिजारत लेकर दूसरे इलाकों की तरफ वो जाते होते थे, और वहां पे बेचते होते थे, ठीक है। इस तरह ये अपनी रोजी रोटी जो थी ना वो इस तरह कमाते थे। और इस चीज को मुतारफ किसने करवाया था, वो हाशिम बिन अब्दुल मन्नाफ ने करवाया था, और उस इस बंदे ने बहुत बहुत स्ट्रेटेजिकली इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये जो अरब था ना, अरब के आसपास क्या था, अरब के आसपास दो बड़ी अंपायर थी। एक तो कौन सी अंपायर थी, एक पर्शियन अंपायर थी, और दूसरी कौन सी अंपायर थी, दूसरी जो थी वो रोमन अंपायर थी। पर्शियन अंपायर ये पर्शियन अंपायर है, ठीक है, ये इधर ये सारा जो इलाका था ना ये सारा पर्शियन अंपायर के कंट्रोल में था, ठीक है। और ये इधर वाला जो सारा इलाका था ना ये था रोमन अंपायर के कंट्रोल में। और अरब किधर बैठ रहे थे, अरब ये जो इलाका था ना ये वाला जो था ये अरब का इलाका था, तो ये इस चीज इधर अरब रहते थे। और मतलब लाइक हाशिम से पहले ना, ठीक है, ये जो ट्रेड रूट, ये जो तजारती काफले जो मुतारफ हुए हैं, इससे पहले अरब इतना मतलब इसको वो कम अहमियत दी जाती थी, इतनी कम अहमियत दी जाती थी, कोई इसको ना नक्शे बनाते थे ना लोग, तो इसको इंक्लूड ही नहीं करते थे, वो कहते थे कि इसको क्या इंक्लूड करना, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी एम्पायर थी ना वो दूसरे इलाकों को तो वो लूटती रहती थी, ठीक है, दूसरे इलाकों को वो फतह फतह करती रहती थी, लेकिन अरब की तरफ कोई भी हाथ आंख ही नहीं उठाता था। उनको लगता था कि लाइक के सहरा में रह रहे हैं, ठीक है, ये खुद ही कबायली जंगे कर करके खुद ही मर जाएंगी, इनकी तरफ देख के क्या ही करना, ठीक है। तो इस लेकिन यहाँ पे ना इनको एक चीज का बहुत ज्यादा फायदा हुआ, वो ये कि जब रोमन और पर्शियन एम्पायर जो थी ना, इनके दरमियान में तकरीबन 800 साल तक जंगें हुई हैं, ठीक है, मतलब एक जंग शुरू हुई और वो 800 साल तक चलती रही, ठीक है। कभी पर्शियन एम्पायर थी, मतलब फारस की जो किंगडम थी, ठीक है, बादशाह फारस की बादशाह थी वो, उसका पलड़ा है भारी हो रहता था, और कभी जो रोमन एम्पायर थी उसका पलड़ा भारी हो रहता था, ठीक है। और जब इन दोनों के पलड़े भारी होते थे ना, तो जो ट्रेडिंग रूट था ना, जो तिजारती सफर मतलब चीजें होती थी, तिजारती जो मकामात होते थे ना वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते थे इसकी वजह से। अब ये जो चाइना है ना, दिख रहा है आपको चाइना, ये जो चाइना और ये जो इंडिया है, ये दोनों के जो है ना, यहाँ के ये बहुत ज्यादा मशहूर थे, बहुत मशहूर थे तिजारत के लिए। और चाइना का आपने आज भी सुना होगा कि चाइना से ना एक सिल्क रोड चलता है, ठीक है। और उसके अलावा आपने शायद सी पैक का सुना हो, मतलब वो हमने सबसे अपने ना तारीख की अपनी बुक्स में होगा, ठीक है। सी पैक जो है वो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान एक रास्ता है, ठीक है, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान तक एक रास्ता इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसके थ्रू उसको यूरोप तक एंट्री करना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। क्योंकि अगर वो बाकी दूसरे अगर रास्तों के थ्रू जाता है ना, तो उसको बहुत ज्यादा लंबा सफर हो रहता है, फिर उसके अलावा उसको जो टैक्स देना पड़ता है ना वो भी बहुत ज्यादा हो रहता है, इसलिए वो शॉर्टकट उसको चाइना को इधर ये चाइना, इधर ये चाइना है, ठीक है। और आज पाकिस्तान इधर बन रहा है, ठीक है, तकरीबन इधर या इधर इधर करके तकरीबन पाकिस्तान बन रहा है, तो इधर करके इस तरह ये सी पैक का रूट बना रहा है चाइना, ताकि उसको फिर बाद में ये मतलब ये इराक ईरान और ये यूरोप की तरफ जाने में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा आसानी हो रहा है, ठीक है। फिर अच्छा, ये जो चाइना और इंडिया की जो मार्केट थी ना वो बहुत ज्यादा फेमस थी, और पूरी जो दुनिया की ज्यादातर इकोनॉमी को ना, ज्यादातर माशियत को यही जो लोग थे ना यही कंट्रोल कर रहे थे। इन दोनों में से क्या हो रहा था, एक सिल्क रोड निकलता था, ठीक है, चाइना और इंडिया के थ्रू एक सिल्क रोड गुजरता था। अब इंडिया से ना यहाँ पे
चाइना पता है क्या करती थी? चाइना कपड़े की मार्केट को कंट्रोल करती थी। चाइना पेपर मार्केट, अच्छा पेपर मार्केट जो थी ना, इस ये मतलब एक ऐसा मुल्क था जिसके पास ना पेपर बनाने का फार्मूला था। और ये अपना पेपर बनाने का फार्मूला ना किसी को लीक ही नहीं करता था, किसी को भी नहीं बनाता था, बताता था कि मैं कैसे पेपर बनाता हूँ, ठीक है। और इसके थ्रू ना ये जो दूसरे इलाके वाले लोग थे इससे पेपर खरीदते थे, और इसकी जो इकोनॉमी थी, इसकी माशियत थी, वो और ज्यादा क्या करते हैं कि फ्लरिश होती थी, ठीक है। और इंडिया के पास आप जानते हो इंडिया के पास सबसे ज्यादा क्या था? अच्छा, उसके पास मसाला जात थे। जैसा कि हम ये जो बरतानिया ब्रिटिश एम्पायर थे, ये जो बरतानिया के जो लोग थे, ये भी इंडिया में कैसे आए थे? ये भी इंडिया में इसी बहाने से आए थे कि जी आपके पास मसाला जात है, तो वो हमसे मसाले लेने आए थे, ठीक है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, यहाँ पे ये बात होने लगे, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता क्या करने लगे, ये इंडिया जो इंडो पाक था ना, ये बरसगीर का सारा इलाका था, इसको क्या करने लगे, इसको कंट्रोल करने लग गए, ठीक है। ये ब्रिटिश एम्पायर था, वो इस तरह ये पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान, ये वाला पूरा इलाका जो था ना, इस तरह इधर आया था, सही है। फिर उसके बाद ये जो यहाँ से इंडिया से ना एक एक रूट निकलता था, इंडिया से वो जाता था ये इधर से इंडिया से जाता था ये पर्शियन की तरफ, ठीक है। बसरा पे यहाँ पे रुकता था, और बसरा से फिर बगदाद की तरफ जाता था, और फिर ये पर्शियन की तरफ जाता था, ठीक है। और ये सिल्क रोड का ये इलाका था, सही है। लेकिन जब जब होती थी ना पर्शियन, मतलब जब वार हो रही थी, होती थी ना, जंग हो रही होती थी पर्शिया के दरमियान और रोमन के दरमियान, तो ये जो इलाका था ना, ये जो रास्ता था, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज्यादा। मतलब इतना डिस्टर्ब हो रहा था कि यहाँ से ना फिर जो शिप्स होती थी ना, समुद्री जो जहाज होते थे, वो गुजर नहीं पाते होते थे, ठीक है। लेकिन सबसे इनमें जो सबसे ज्यादा सेफ जो रूट था ना, सेफ जो रास्ता था ना, वो इंडिया से जाता था ये एडन की तरफ, यहाँ पे यमन था, ठीक है। यमन था, ये इंडिया और यमन इनके दरमियान जो रास्ता था ना, ये बहुत ज्यादा सेफ था, बहुत ज्यादा सेफ था। क्योंकि जब फॉर एग्जांपल अगर जो पर्शिया की वार हो रही है, ये यूरोप के साथ, ठीक है, रोम के साथ हो रही है, ठीक है, ये तो आपस में लड़ रही हैं। इधर ये वाला जो है ये रास्ता, अभी वो क्या होगा, वो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो मुतासिर होगा। लेकिन इंडिया से ये जो यमन वाला इलाका है ना, ये क्या होगा, ये मुतासर नहीं होगा। ये कैसे मुतासर नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों तो इधर लड़ रही हैं, इधर तो ये आराम से जो शिप्स थे वो आ जा रहे होते थे, ठीक है। और यहाँ पे जब इंडिया से जो सामान था, चाइना से इंडिया की तरफ, इंडिया में आता होता था, इंडिया से फिर आगे यमन में जाता होता था। और यमन में ये जो अफ्रीका है ना, ये जिसको हबशा हबशा की अंपायर थी, ठीक है, मतलब जो नजाशी की जो अंपायर थी ना, यहाँ पे थे, ठीक है। और यहाँ पे आके सामान का होता था, वो रुक जाता, इनकी ना बंदरगाह पे रुक जाता था। जब देखे सामान जो है वो इनकी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा सामान जो है वो इधर खड़ा है, लेकिन बाकी जो पर्शिया की तरफ भी जंग हो रही है, रोम की तरफ भी जंग हो रही है, तो मेरा जो सामान है वो क्या होगा, वो यहीं पे ही खड़ा रहेगा, वो आगे अब जाने की काबिल ही नहीं है, आगे वाले इलाकों की तरफ जाने की, क्योंकि खतरा है आगे। तो यहाँ पे ना चीजें बहुत ज्यादा हो जाती होती थी, बहुत ज्यादा उनकी वाफर मिकदार हो जाती होती थी, जिसकी वजह से फॉर एग्जाम्पल अगर गंदुम है ना किसी इलाके में, अगर वहां पे बहुत ज्यादा गंदुम है ना, बहुत ज्यादा गंदुम, तो वहां पे गंदुम की कीमत जो होगी ना, वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे गंदुम बिकी बहुत ज्यादा रही है, सही है। लेकिन अगर कोई इलाका है वहां पे गंदुम है ही नहीं, बहुत कम है, तो वहां पे उसकी प्राइस जो होगी गंदुम की, वो बहुत ज्यादा क्या होगी, वो बहुत ज्यादा हाई होगी, क्योंकि वहां पे गंदुम अब मुझे मिल ही नहीं रही। तो इसी तरह ये जो अफ्रीका की ना, क्योंकि वहां पे ना माल वाफर मिकदार में जमा हो रहता होता था, तो इस वजह से अफ्रीका की जो इकोनॉमी होती थी ना, जो माशत होती थी ना, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता होता था। और वहां पे जो लोग थे ना, वो नजाशी जो था ना, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता होता था कि लाइक मेरी जो इकोनॉमी है ना, वो जंग दूसरे इलाकों में जंगे हो रही है, लेकिन उनकी वजह से मेरी इकोनॉमी जो है वो कभी कभी ऊपर हो रही है, कभी नीचे हो रही है, ठीक है, इस तरह होता जा रहा होता था। तो अब जो ये था, हाशिम था, हाशिम ने पता क्या किया, इसने जब देखा कि जब जंग होती है ना, तो ये बाकी सारे रूट्स जो हैं वो तो मुतासिर होते रहते हैं, लेकिन ये इंडिया से अफ्रीका की तरफ, जो यमन की तरफ जो रूट जाता है, वो वाला मुतासिर नहीं होता। तो इसने सोचा कि मैं यमन से सामान लेकर ऊपर जाऊंगा, ये बगदाद, ये सीरिया की तरफ, ये शाम की तरफ जाऊंगा, ठीक है। और शाम से फिर मैं पर्शियन एम्पायर को भी क्या दूंगा, पर्शियन एम्पायर को भी सामान दिया करूंगा, और इधर से भी मैं रोमन एम्पायर को भी दिया करूंगा, और इनको कहा करूंगा कि मैं तुम्हें थोड़ी सी क्या करूंगा, थोड़ी कम कीमत पे सामान दिया करूंगा, ठीक है। तो इस तरह उसने ये जो रस्ते थे इनको क्या किया, इनको बहाल किया। और जब इसने मतलब लाइक इसने आना था अब यमन की तरफ, तो दरमियान में ना कुछ डाकू रहते थे, डाकू कबीले थे, मतलब डाकू सिर्फ
ये नहीं था कि कुछ ही लोग मतलब एक कबीले के कुछ ही लोग डाकू हो गए, नहीं नहीं नहीं, बल्कि पूरे का पूरा कबीला ही डाकू हो रहा था। जैसे कि बनु गफ्फार का वो जो अबू जर गफ्फारी ना, जिस कबीले के थे, वो वाला जो था ना, ये जो कबीला था, ये ना बहुत लूटते थे। और भी बहुत सारे कबीले थे, वो बहुत ज्यादा लूट लूट मचार मतलब लूट मार, सॉरी, लूट मचार कह रही, लूट मार करते होते थे, ठीक है। और जब लूट मार करते होते थे ना, तो जो भी आता होता था ना, उसका सामान क्या करते थे, उसका सामान भी ले लेते थे। और उसके लोगों को मारते नहीं होते थे, बल्कि उनका पानी ले लेते होते थे। क्योंकि पानी ले लिया तो सहरा में पानी तो है नहीं, तो क्या करेंगे बाकी लोग, बाकी लोगों को जब प्यास लगेगी तो वो खुद ही प्यास से तड़प तड़प के मर जाएंगे, मतलब इतनी गंदी मौत उनको देते होते थे। सही है। तो अब जो हाशिम था, ठीक है, हाशिम ने क्या किया, ये जो सारे कबीले थे ना, इनके साथ क्या किया, इनको कहा कि जब मैं सामान्य तजारत लेकर जाया करूंगा ना यमन की तरफ, ठीक है, और यमन से फिर मैं शाम की तरफ, ऊपर शाम की तरफ जाया करूंगा, तो तुम्हें ना रास्ते में जो जो कबीले ना, उनके साथ उसने ना मुआहदे कर लिया कि तुम्हें भी मैं क्या क्या करूंगा, तुम्हें फीस दिया करूंगा। जैसे आज भी हमारे क्या कर रहे हैं, जैसे कि ईरान के पास जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है, उसको क्या करें, उसके पास से अगर शिप्स ने, अगर समुद्री जहाजों ने अपना सामान तजारत लेकर जाना है, तो वहां पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। टैक्स देंगे तो फिर ही आप गुजर सकेंगे, अगर आप टैक्स नहीं दोगे तो आप गुजर नहीं सकोगे। इसी तरह हाशिम ने भी क्या किया, उसने कहा कि मैं तुम लोगों को क्या करूंगा, मैं टैक्स दूंगा, टैक्स दे के फिर मैं गुजरा करूंगा। इस तरह पता है क्या होगा, इस तरह तुम्हें मतलब लाइक तुम दूसरों को लूटना है तो लूट लो, लेकिन तुम मेरे हमारे थ्रू क्या हो जाएगा, तुम लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर तुम लोगों के पास कोई सामान है और तुम भेजना चाह रहे हो सीरिया में, ठीक है, या यमन में भेजना चाह रहे हो तजारत के लिए, तो तुम हमें ही पकड़ा देना, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, इतना लंबा सफर क्यों करना, तो हम ही तुम्हारा ना सामान जो है वो तजारत मतलब तुम्हें करके, और जो भी प्रॉफिट हुआ करेगा वो तुम्हें दे दिया करेंगे, और इस तरह बांट लिया करेंगे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया था, पैक्ट किए हुए थे अपने माहदे इनके साथ ना किए हुए थे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जो कुरैश के जो लोग थे ना, वो क्या हो रहा है, उनकी माशियत जो थी ना, वो फ्लरिश करने लग गई, ठीक है, मतलब उसमें उनकी पैसे में फरावानी होने लग गई थी। इस तरह ऐसा ऐसा करके कुरैश जो थी वो अमीर होने लग गई थी, और जो बाकी जो कबाइल थे ना, कुरैश के अलावा बाकी जो कबाइल थे, वो इतने ज्यादा अमीर नहीं थे जितने के कुरैश अमीर थे। सही है। आपको इस चीज की समझ लगी है, मतलब ये जो समझाया मैंने, मुझे समझ नहीं आई कि आप लोगों को लगी है कि नहीं। देखिए, अगर आपको समझ ही ना लगी तो मैं अगेन बता सकती हूँ, ठीक है, मतलब इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप को समझ नहीं लगी, ठीक है, और अगर हम ऐसे ही आगे निकल जाएंगे, तो जब कल को आप किसी को समझाओगे ना सीरा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आधे रास्ते में ही फंस जाएंगे हम। क्योंकि हमें खुद ही रूट्स की समझ नहीं लगी, ठीक है, रास्तों की समझ नहीं लगी, तो फिर हम दूसरों को कैसे ही समझा सकेंगे, और दूसरों को कैसे ही बता सकेंगे कि सीरा क्यों इम्पोर्टेंट है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जाकर सबसे पहले जो इनके तजारती रास्ते थे, इन पे क्यों अटैक करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको ही कंट्रोल किया। कंट्रोल क्यों किया? अच्छा, सबसे ना एक चीज जो है, अब भी ना, आप जब न्यूज को देखोगे ना, तो एक चीज आप ना बहुत ज्यादा देखना, कि जहां पे भी जंग होती है ना, जिस भी इलाके में जंग होती है, वो पता क्या करता है इलाका, सबसे पहले अपना जो ये जो तजारती रास्ता होता है ना, उसको बंद करता है। जैसा कि ये जो यमन था, ठीक है, यमन पे जो जब इसराइल बमबारी कर रहा था ना, तो इसने यमन ने भी क्या किया, इसके पास से जो रेड सी, बहर अल काहल जो था ना, इसको शायद उर्दू में बहर अल काहल ही कहते हैं, ठीक है, उर्दू इंग्लिश में इसको रेड सी बोलते हैं, इसने ना रेड सी को बंद कर दिया था। इसने कहा था कि देखो, तुमने बमबारी करनी है तो करके दिखाओ, करो करो, लेकिन मैं जो तुम्हारा ये जो रेड सी है ना, यहाँ से अब कोई भी तुम्हारी जो साहली वो जहाज है ना, वो नहीं गुजर सकेंगे, यहाँ से कोई भी तुम्हारा तजारती जो सामान है ना, वो नहीं गुजर सकेगा, ठीक है। जिसकी वजह से दुनिया की जो 12% जो तजारती सामान है ना, वो रेड सी से गुजरता है। और जब यूरोप का सामान यहाँ से गुजरेगा ही नहीं, अमेरिका का, इसराइल का, यहाँ से सामान गुजरेगा ही नहीं रेड सी से, ठीक है, जो यमन के पास वाला जो इलाका है वहां से, तो क्या होगा, उनकी इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, वो बहुत ज्यादा कमजोर होगी। और जब इकोनॉमी कमजोर होती है, तो फिर आप जंग करने के काबिल नहीं रह सकते, क्योंकि जो कोई भी जंग जो है वो इमोशंस की बेस पे,
जज्बात की बुनियाद पे नहीं लड़ी जा सकती, जंग हमेशा पैसों से ही लड़ी जाती है, ठीक है। तो इस तरह यमन ने इसको बंद किया था, ठीक है, आप पिछले साल बंद कर रखा था। और अब आप देख रहे हो कि ईरान पे जब वो अटैक कर रहे हैं ना अमेरिका और इसराइल, तो ईरान ने क्या कर दिया, ईरान के पास जो स्टेट ऑफ होम्स है ना, उसने वो बंद कर दिया कि अब कोई यहाँ से अमेरिका और इसराइल का कोई जहाज गुजर के नहीं दिखा सकता, ठीक है। अगर गुजरेगा तो क्या होगा, उनको वहां वहां पे ही उनपे मिसाइल अटैक कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसकी वजह से भी अमेरिका और इसराइल की इकोनॉमी जो है वो क्या होगी, वो उस पे बहुत बुरा वो बहुत बुरी मुतासर होगी, सही है। और जब मुतासर होगी तो उनके पास जंग लड़ने के लिए क्या होंगे, पैसे नहीं रहेंगे, और जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप जंग लड़ ही नहीं सकते। और जब पैसे नहीं होंगे तो उसके बाद आपके जो अंदर वाली जो अवाम है ना, आपके पास जो अवाम, आपके मुल्क की अवाम है, वो भी आप पे प्रेशर डालने लग जाएगी कि तुम जंग को बंद करो, ठीक है। लोग सिविल वार जो होती है ना, वो भी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह मुल्क जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बुनियादें जो है ना वो खोखली होने लग जाती है। मतलब जो एक माइशियत है ना, वो इकोनॉमी जो है वो इतना बड़ा रोल जो है वो अदा करती है किसी भी मुल्क को चलाने में या किसी भी मुल्क को गिराने में, सही है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीना में जाकर सबसे पहले कुरैश के जो तिजारती रस्ते थे उनको कंट्रोल किया था, ठीक है। और उसके अलावा जो तिजारती रस्ते में जितने भी कबीले आबाद थे उनके साथ माहदे किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो हाशिम था, उसने भी बहुत मतलब एक बहुत अक्लमंद बंदा था ये। इसने भी देखा कि कौन कौन से इलाके हैं जहां से हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको फ्लरिश कर सकते हैं, उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ताकि हम क्या कर सके, हम भूख जो है ना यहाँ से उसको खत्म कर सके और हाजियों को अच्छा खाना पिलाना मतलब दे सके। तो ये वाली जो चीज थी ना, वो उसको थोड़ा सा हमने आज देखने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको प्लीज समझ नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, हम इसको दोबारा देख सकते हैं। और अगले नेक्स्ट वाला जो सेशन होगा ना इंशाल्लाह, उसमें हम दोबारा इसको देखेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो रह गई हैं। मतलब मुझे ये था कि वो ओवरलोड ना हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कर लें। और प्लीज अगर आपको मेरे से कोई भी मसला भी आ रहा है ना, कि मैं तेज बोल रही हूँ या कुछ मैं कभी मैं गाड़ी उर्दू बोल जाती हूँ या कोई ऐसे वर्ड्स बोल जाती हूँ जो आपको समझ नहीं आते, तो आप मुझे बता दिया करें। क्या कोई क्वेश्चन नहीं है?